دیں۔ تو چلیے سنتے ہیں آج ایک پراسرار کہانی۔ اس وقت رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے اور وہ بڑے انہماک سے اکنامکس کی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی، کیونکہ کل اس کا اکنامکس کا پیپر تھا۔ حالانکہ اس کی اچھی خاصی تیاری تھی، لیکن نہ جانے کیوں پھر بھی دل کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا۔ یہی سوچ کر وہ پریشان ہوئی جا رہی تھی کہ اگر کل کا پیپر بہت مشکل آیا تو پھر کیا ہوگا۔ اس نے پڑھتے پڑھتے اچانک ہی وال کلاک کی طرف نگاہ اٹھائی تو گھڑی کی سوئیاں 1 بجا رہی تھی۔ اس نے جمائی لیتے ہوئے کتاب میز پر رکھ دی۔ 5 منٹ ریسٹ کر لوں پھر نوٹس پڑھنا شروع کروں گی، اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے سوچا۔ پورا گھر ایک مہیب سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ امی ابو اور دونوں چھوٹے بہن بھائی اپنے اپنے کمروں میں دنیا و مافیا سے بے خبر گہری نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ تمام کمرے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، سوائے اس کے کمرے کے یا پھر برآمدے میں 40 واٹ کا بلب روشن تھا جو ابو ہمیشہ رات کو جلا دیا کرتے تھے۔ 5 منٹ ریسٹ کرنے کے بعد اس نے نوٹس کی طرف ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ اسے امی کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے پکار رہی تھی۔ وہ بری طرح چونک اٹھی۔ اتنی رات گئے امی کیوں مجھے بلا رہی ہے؟ کہیں کسی کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی؟ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی ان کے کمرے میں پہنچی، مگر یہ کیا، وہ دروازے میں ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ کمرے میں پھیلا گہرا اندھیرا اور مکمل سکوت کچھ اور کہہ رہا تھا، اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس کمرے سے کسی نے بھی کوئی آواز نہیں دی ہے۔ اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر امی ابو کے بیڈ کی طرف دیکھا۔ برآمدے سے آنے والی ہلکی سی روشنی میں اسے وہ دونوں بے خبر سوتے نظر آ رہے تھے۔ یقیناً یہ میرا وہم تھا، یہ سوچتے ہوئے وہ واپس پلٹی تو سامنے چھوٹے بہن اور بھائی کے کمرے پر نظر پڑ گئی۔ وہ بے اختیار ان کے کمرے میں چلی آئی۔ اسے اپنے ان دونوں چھوٹے بہن بھائیوں سے بے پناہ محبت تھی۔ دونوں بہن بھائی اسکول پڑھتے تھے اور وہ کالج جاتے تھے۔ چھوٹے بہن بھائی بھی اپنی نیلما آپی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ کچھ دیر وہ خاموش انہیں کھڑے دیکھتی رہی اور پھر باری باری ان کی پیشانی چوم کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ کیسا عجیب سا سناٹا پھیلا ہوا تھا پورے گھر میں۔ پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سا خوف اسے اپنے رگو پوئے میں دوڑتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے کتاب اٹھائی، لیکن دماغ جیسے بلینک سا ہو رہا تھا۔ اس نے امی کی کتنی واضح آواز سنی تھی، نیلما نیلما جلدی آؤ۔ کتنی بے قراری تھی ان کی آواز میں، اور یہ وہم ہرگز نہیں تھا۔ اس نے الجھ کر کتاب نیچے رکھ دی۔ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ آج دوپہر کو بھی اس کے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا تھا۔ دوپہر کو وہ کچھ دیر کے لیے اپنی بہت عزیز سہیلی کے پاس کچھ ضروری نوٹس ڈسکس کرنے کے لیے گئی تھی۔ نیلما کی سہیلی بھی اس کے گھر کے نزدیک ہی رہتی تھی، بس دوسری گلی میں اس کا گھر تھا۔ واپسی پر گرمی کی شدت سے گھبرا کر اس نے درخت کے نیچے کھڑے کلفی والے سے کلفی خریدنے کا ارادہ کیا۔ پرس سے پیسے نکال کر وہ کلفی والے کی جانب بڑھی، لیکن وہ پیسے لینے کی بجائے ایک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ کیسی عجیب سی آنکھیں تھیں اس کی، ساکت اور زندگی سے آری آنکھیں۔ نیلما کے ہاتھ کپ کپ آ گئے اور حلق میں جیسے کانٹے اٹھ گئے۔ کچھ بولنا چاہا لیکن آواز نکل ہی نہ سکی۔ یہ صرف چند لمحوں کی ہی بات تھی۔ پھر درخت کے اوپر سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی، منمناتی ہوئی سی ہنسی تھی۔ اس نے گھبرا کر اوپر دیکھا تو ایک عورت سرخ رنگ کے دوپٹے کا گھونگھٹ کاڑے اس درخت کی ایک شاخ پر اپنے دونوں پیر لٹکائے بیٹھی تھی۔ کیسے سیاہ اور سوکھے سوکھے سے پیر تھے اس کے، جو اس کے لہنگے سے جھانکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ نیلما کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے چاہا وہاں سے بھاگ جائے، لیکن اسے یوں محسوس ہو رہا تھا گویا اس کے پیروں میں جان ہی نہیں رہی۔ تب ہی اتفاق سے پڑوس میں رہنے والی آنٹی اپنی کار میں وہاں سے گزری اور اسے یوں حواس باختہ درخت کے نیچے کھڑا دیکھ کر انہوں نے کار روک دی اور اسے پکارا تو پھر وہ اپنے حواس میں واپس آ گئی۔ کیا ہوا نیلما، سب خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے کار کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، کلفی والا اپنا ٹھیلا لے کر آگے بڑھ گیا، لیکن اس کی بے جان آنکھیں اس وقت بھی اسے اپنے چہرے پر جمی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ دوڑ کر آنٹی کی کار کے قریب آ گئی اور بنا پوچھے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ آنٹی، یہ کلفی والا بہت عجیب سا آدمی لگ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے۔ پتہ نہیں کیسے بے اختیار ہی اس کے منہ سے خوف کے کپکپاتے ہوئے یہ جملے نکلے تھے۔ آنٹی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارے پاگل، ایسے نہیں کہتے، دیکھو تو بیچارہ اس عمر میں اتنی شدید گرمی میں گھر چلانے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے۔ تبھی نیلما نے درخت کی اس شاخ کی جانب دیکھا جہاں اسے وہ عجیب الخلقت عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی، لیکن اس وقت وہ شاخ بالکل خالی تھی۔ خوف سے اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ ناحق ہی اس درخت کے نیچے آ کھڑی ہوئی تھی۔ شاید یہ درخت چڑیلوں اور بھوتوں کا مسکن ہے۔
उसने खौफ से कांपते हुए सोचा, लेकिन आंटी से उसने उस औरत का जिक्र नहीं किया कि वो मजाक उड़ाती, और फिर घर आकर अम्मी से भी इस वाक़ये को उसने छुपा कर रखा, क्योंकि कल उसका बहुत अहम पेपर था और अम्मी काफी ज़ईफ़ुल एतकाद खातून थी। पता नहीं ये सुनकर उनका रिएक्शन क्या होता, जबकि वो बड़ी यकसुई से तैयारी करना चाह रही थी। हो सकता है कि ये सब मेरा वहम हो, गर्मी भी तो थी इतनी शदीद। उसने खुद ही दिल को तसल्ली दे डाली, लेकिन अब इस वक्त रात के इस गहरे सन्नाटे में वो खौफ जैसे दोबारा उसके अंदर जोर जोर से उसे भींच रहा था। वो जिंदगी से आ रही दो बेजान आंखें उसे चारों जानिब से अपनी तरफ घूरती हुई महसूस हो रही थी। नीलिमा का चेहरा पसीने से तर हो गया। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? शायद मुझे अम्मी को जगा देना चाहिए, उसने कांपते हुए दिल के साथ सोचा। तब ही उसे अपने भाई के रोने की आवाज ने बुरी तरह चौंका दिया। आपी आपी, वो बुरी तरह से रोते हुए उसे पुकार रहा था। नीलिमा पूरी कुव्वत से दौड़ती हुई अपने भाई के कमरे में पहुंची तो एक बेहद दहशतनाक और रूह फरसा मंजर ने उसके होशो हवास को मुअत्तल कर दिया। सामने वही कुल्फी वाला बूढ़ा बैठा अपनी जिंदगी से आरी आंखों के साथ उसे घूर रहा था, और उसकी गोद में उसका छोटा भाई था जो उसके बाजुओं के शिकंजे में जकड़ा हुआ था, और वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बुरी तरह रो रहा था। अलीब, वो पूरी कुव्वत से चीखी। वो बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी अजीब थी कि नीलिमा के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पूरे मुंह में सिर्फ 3 दांत थे, जिनमें एक दांत खून से तर था, जबकि बाकी दोनों दांत बेइंतहा मैले और पीले थे। मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो, वो अजीब मिनमिनाती आवाज में अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जबकि दूसरे हाथ से उसने उसके भाई अलीब को मजबूती के साथ जकड़ा हुआ था। अम्मी अब्बू जल्दी आइए। नीलिमा के हलक से एक दिल दोस्त चीख निकली और फिर वो चिल्लाती ही चली गई। दफतन उसे कंधे पर किसी का हाथ रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसने बेख्तियार पलटकर पीछे देखा तो वही सुबह वाली औरत जिसके चेहरे पर उस वक्त भी घूंघट पड़ा हुआ था, उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। नीलिमा की चीखें बेख्तियार रुक गईं और वो फटी फटी आंखों से उस औरत को देखने लगी। वो भूखा है, उसे कुछ खाने को दो। घूंघट के अंदर से वो मिन मिन करती हुई बोल रही थी। नीलिमा थर थर कांपने लगी। उसका भाई भी बुरी तरह रो रहा था, तड़प तड़प कर उसे पुकार रहा था, लेकिन कितनी हैरत की बात थी कि साथ वाले बेड पर लेटी हुई उसकी छोटी बहन की नींद में जरा सी भी खलल नहीं पैदा हुई। और मजीद हैरत की बात ये थी कि अम्मी अब्बू इतना शोरगुल होने के बावजूद कमरे से बाहर नहीं निकले थे, वरना अम्मी की आंख तो जरा सी आहट से खुल जाती थी। नीलिमा ने बड़ी बेबसी से अपने छोटे से मासूम भाई को देखा, जो उस गंदे शक्ल वाले बूढ़े के शिकंजे में जकड़ा पूरी तरह से तड़प रहा था। मेरे भाई को छोड़ दो, तुमको अल्लाह का वास्ता है। वो बेइख्तियार रोते हुए जमीन पर बैठ गई। खौफो दहशत और परेशानी से जैसे उसका जहन मफलूज होता जा रहा था। हाथों पैरों में जैसे जान ही नहीं रही थी। इसे खाना दो, वो भूखा है। दफतन वही मनहूस आवाज सरगोशी की सूरत में उसके कान के पास गूंजी। वो औरत भी उसके साथ ही जमीन पर बैठ चुकी थी और चेहरे से घूंघट भी सिरक चुका था। उसकी बड़ी बड़ी बेनूर आंखें, जिनमें जिंदगी की कोई रमक नहीं थी, नीलिमा के चेहरे पर जमी हुई थी। नाक की जगह महज एक सुराख था और होंठ भी बिल्कुल सफेद थे। वो अपना गंदा सा हाथ नीलिमा के कांधे पर रखे सिर्फ एक ही जुमले की गर्दान कर रही थी, इसे खाना दो, वो भूखा है। इसे खाना दो, वो भूखा है। अच्छा अच्छा, मैं अभी खाना लाती हूँ, पर तुम लोग मेरे भाई अलीब को छोड़ दो, वो उस औरत से दूर हटते हुए बोली। वो लरसते कदमों से अपने भाई की जानिब बढ़ी। मेरे भाई को छोड़ दो, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। उसने बड़े ही इल्तिजा करने वाले अंदाज में बूढ़े की तरफ देखते हुए अपने भाई की जानिब अपने दोनों हाथ बढ़ा दिए, लेकिन दूसरे ही लम्हे खौफ की शिद्दत से लड़खड़ा कर पीछे हट गई। उसके भाई की आंखें एकदम से उसी तरह उस बूढ़े की आंखों की तरह बेरमक हो गई थीं। ऐसी आंखें जिनमें जिंदगी की कोई भी रमक ना हो। अब भाई भी उसे घूरते हुए हंसने लगा, बिल्कुल उसी बूढ़े की तरह। नीलिमा फटी फटी आंखों से उसको देखने लगी। अब वो अपने दोनों हाथों के इशारे से उसको अपने पास बुला रहा था। आपी, मेरे पास आओ ना। नीलिमा ने देखा कि उसके 7 साला भाई का मासूम चेहरा उस वक्त एक बूढ़े शख्स की चेहरे की जैसे लग रहा था, और उसके होंठों पर ऐसी ही भयानक हंसी थी कि वो थर्रा कर रह गई। वो औरत उसके पास से गुजर कर अलीब के नजदीक पहुंच गई और फिर उसने बूढ़े की गोद से अलीब को छीनकर जमीन पर पटक दिया।
नीलिमा की बेइख्तियार चीख निकल गई, लेकिन अलीब पर जैसे गिरने का कोई असर ही न हुआ था। उसका भाई दूसरे ही लम्हे फुर्ती से उठ खड़ा हुआ। उसकी फुर्ती और नीलिमा के खौफजदा चेहरे को देखकर वो औरत और बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगे। और हैरत की बात ये कि उसका भाई अलीब भी उनकी हंसी के साथ साथ हंस रहा था। ही। कमरे में चार सू उन लोगों की ड्रोनी हंसी की आवाज गूंजने लगी। नीलिमा की टांगे और जहन दोनों ही शल होते जा रहे थे। वो चीखना चाह रही थी, लेकिन हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। फिर उसने उन तीनों को अपनी छोटी बहन रिमशा के बेड की तरफ बढ़ते देखा। भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, बूढ़ा अपनी मिनमिनाती हुई आवाज में कहते हुए रिमशा के नजदीक आकर रुक गया, जबकि उसका भाई अलीब और वो औरत अभी भी बदस्तूर हंसे जा रहे थे। रिमशा, यहाँ से भागो, नीलिमा हज़ियानी अंदाज में चीखी थी। फिर उसका जहन तारीकियों में डूबता चला गया। जब होश आया तो वो अस्पताल के एक सफेद बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी अम्मी और अब्बू उसके सरहाने खड़े हुए थे। परेशानी उनके चेहरे से हवीदा थी। अम्मी की आंखें बहुत रोने की वजह से सूजी हुई लग रही थी। अम्मी, आप लोग कहाँ थे? मैंने आप लोगों को कितना पुकारा, कितनी आवाजें दी। चंद लम्हे उन लोगों को टिकटिकी बांध कर देखने के बाद वो यकायक हज़ियानी अंदाज में चिल्लाने लगी, अम्मी प्लीज रिमशा को बचा लें, अलीब कहाँ है? वो चीख चीख कर पागल हुई जा रही थी। डॉक्टर और नर्सें सब कमरे में जमा हो गए थे, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। फिर जबरदस्ती उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया गया और उसका जहन एक बार फिर गनूदगी में डूबता चला गया। अब की बार जब उसकी आंख खुली तो कमरे में अम्मी और अब्बू के अलावा अलीब और रिमशा भी थे। वो चुपचाप दम साधे अलीब को देखती रही। आपी, आपको क्या हो गया है? अलीब उसे आंखें खोलता देखकर भागकर उसके करीब आ गया, जबकि अम्मी और अब्बू भी उसके नजदीक आकर उसके हाथ से हिलाने लगे। अलीब, वो बूढ़ा आदमी और वो औरत कैसे चले गए? उसने नकाहत भरे लहजे में उससे सवाल किया। कौन बूढ़ा आदमी आपी? अलीब ने मासूमाना अंदाज में पूछा। बेटी, ये तुम्हें क्या हो गया है? अम्मी ने होल कर नीलिमा को गले से लगा लिया, लेकिन वो बदस्तूर खौफजदा नजरों से अलीब को देखती रही। ये मेरी बच्ची को क्या हो गया है अलीब के पापा? माँ बेख्तियार रो दी। आज सुबह जब वो सोकर उठी थी तो अलीब और रिमशा को स्कूल के लिए जगाने से पहले वो नीलिमा के कमरे में आई थी कि उसको पेपर के लिए कहीं देर ना हो जाए, लेकिन उसे कमरे में ना पाकर वो उसे ढूंढती हुई बच्चों के कमरे में आई तो दरवाजे पर ही नीलिमा को फर्श पर बेहोश पड़ा देखकर उनके तो औसान खता हो गए और फिर वो चीखने चिल्लाने लगी। उनकी चीखों पुकार सुनकर जब उनके शोहर दौड़े चले आए तो फिर नीलिमा को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे आज 2 दिन के बाद होश आया था। डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसे हुआ क्या था। उन्होंने उसके पापा को यही बताया था कि इनकी बच्ची का जहन किसी शदीद खौफ और डिप्रेशन के जेरे असर है और इस वक्त इसकी आंखों से छलकता खौफ डॉक्टरों की बात की तस्दीक कर रहा था। नीलिमा बेटा, मुझे बताओ तुम किस बात से खौफजदा हो? आखिर मैं हूं ना तुम्हारे पास, मैं सब ठीक कर दूंगा। नीलिमा के पापा ने बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए पूछा। फिर आप रात को क्यों हमारी मदद को नहीं आए थे पापा, जब मुझे, रिमशा और अलीब को वो लोग डरा रहे थे, खत्म करने की कोशिश कर रहे थे? वो आंसुओं से भीगी हुई आवाज में उनसे शिकवा करने लगी। कौन डरा रहा था बेटा तुम्हें? मुझे सब तफसील से तो बताओ ना। नीलिमा ने खौफजदा नजरों से अपने भाई की जानिब देखा जो नजदीक ही खामोश खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों की बदलती रंगत नीलिमा को वाज़ेह तौर पर महसूस हुई। होठों पर वैसी ही मुस्कुराहट रेंग रही थी। नीलिमा ने कपकपा कर अपने पापा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अबू, उन लोगों ने अलीब पर जादू कर दिया है, उसको अपने जैसा बना दिया है। वो खौफ से लरसती हुई आवाज में अपने भाई को देखकर बोली। उसके पापा ने कुछ हैरत से अपने बेटे की जानिब देखा जो अपनी आंखों में जमाने भर की मासूमियत भरकर उन लोगों को देख रहा था। फिर वो नीलिमा की जानिब थोड़ा सा झुका। अभी मुझे क्या बना दिया है उन लोगों ने, बताओ तो सही। नीलिमा ने बेइख्तियार उसकी आंखों की तरफ देखा। उसे अपनी भाई की आंखें वैसे ही मुर्दा नजर आ रही थी और अपने भाई का चेहरा उस बूढ़े शख्स जैसा महसूस हो रहा था। वो थर-थर कांपने लगी। अबू, ये अलीब नहीं है, उन लोगों ने हमारे अलीब को मार दिया है। आप मेरा यकीन करें अब्बू, मेरा अलीब शायद मर गया है। वो बेइख्तियार अपने बाप का हाथ थामकर बेतहाशा रोने लगी। उसकी चीखें आसमान को छू रही थीं। उसकी हालत देखकर उसकी माँ भी रोने लगी। मेरी बच्ची पर लगता है कोई साया हो गया है, प्लीज आप किसी मौलवी को बुलाएं। वो उसे अपने कलेजे से लिपटाते हुए रंधी हुई आवाज से कहने लगी। बेटी, अलीब अल्लाह रखे बिल्कुल ठीक है, देखो ये तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। लेकिन नीलिमा मुंह छुपाए रोती रही। वो उसके चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। इतने में नीलिमा को अपने बेड के किनारे वही औरत नजर आई।
नीलिमा ने फिर उसे कहते सुना, वो भूखा है, उसे कुछ खाने को दो। नीलिमा अपनी अम्मी के साथ चिपकी और कहने लगी, अम्मी इनको कुछ खाने को दे दो, नहीं तो ये हमें मार के खा जाएंगे। उसकी अम्मी समझ गई कि यकीनन हमारी बेटी के साथ कोई और मामला है। उसी शाम उसके अब्बू हॉस्पिटल में एक मौलवी साहब को ले आए, जिन्होंने नीलिमा पर पहले तो कुछ दम किया और फिर नीलिमा से पूछा कि बेटा मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। नीलिमा ने डरते डरते उनको सारी बात बता दी कि कैसे उसको एक बूढ़ा आदमी और एक औरत नजर आते हैं जो कहते हैं कि वो भूखा है, उसे कुछ दो। वो कुछ खाने के लिए मांगते हैं और उन्होंने उसके भाई को भी मारकर अपने साथ मिला लिया था। मौलवी साहब ने उसकी अम्मी को कुछ तावीज दिए कि बेटी को पानी में डालकर पिला दें। साथ ही कहा कि इसके बेड के पास सूरह बकरा की तिलावत लगा दें। आपकी बेटी को कोई नजर बद हो गई है। मैं आपकी बेटी को जिन्नात से छुटकारा तो नहीं दिला सकता, लेकिन मैं एक आमिल का पता जानता हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे साथ उस आमिल के पास चल सकते हैं, वो आपकी मदद जरूर करेगा। नीलिमा के पापा मौलवी साहब के साथ उस आमिल के पास गए और सारा वाकया बताया। उस आमिल ने एक मुराकबा किया और फिर बताया कि आपकी बेटी को दरख्त के नीचे से शरीर जिन्नात का साया हो गया है। अगर वो आपकी बेटी से खाने के लिए मांग रहे हैं तो आपको अपनी बेटी का और अब सब घर वालों का सदका देना होगा। आप इस तरह करें कि आप अपनी बेटी का 2 बकरों का सदका दें। उन्हें ज़िबा करके जानवर का गोश्त उसी दरख्त के नीचे जाकर रख दें। रिमशा के पापा ने ऐसे ही किया। 2 बकरों का सदका देकर उस दरख्त के नीचे रख दिया और फिर पीछे पलटे बगैर वो अपने घर की तरफ चले गए। 15 मिनट बाद जब वो दोबारा उस दरख्त के पास से गुजरे तो देखा वहाँ कोई गोश्त मौजूद नहीं था। फिर वो आमिल के साथ अपनी बेटी के पास हॉस्पिटल में गए। आमिल ने दम दरूद करके उन जिन्नात को वहाँ पर हाजिर करवा लिया और कहा कि तुम इस लड़की का पीछा छोड़ दो, वरना तुम मुझे जानते नहीं मैं किस कदर सख्त आमिल हूँ। वो भूखे बूढ़ा जिन और बुढ़िया कहने लगे कि हम एक शर्त पर इस लड़की को छोड़ेंगे, तुम 3 दिन तक उस दरख्त के नीचे बकरे का गोश्त रख दिया करना, फिर हम कभी इस लड़की के पास नहीं आएंगे। ये कहकर वो चले गए और निशानी के तौर पर सामने पड़ा कांच का जग टूट गया। उस आमिल ने नीलिमा पर दम किया। साथ ही नीलिमा की माँ को ताकीद की कि रोजाना घर में सूरह बकरा की तिलावत लगाएं और नीलिमा के पापा घर के चारों कोनों में सुबह और शाम जरूर आजान दें। और साथ ही कुरानी आयात का मजमुआ बताया जिनको पढ़कर पानी पे दम करके नीलिमा को 7 रोज तक मतवातर पिलाना है। आमिल ने नीलिमा के पापा को ताकीद की कि 3 रोज तक बकरे का सदका देने के बाद घर में कुरान ख्वानी करवानी है। आमिल ने बताया कि ये सब काम करने के बाद इंशाल्लाह नीलिमा को कभी ये भूखे जिन्नात तंग नहीं करेंगे। आमिल की ताकीद पर अमल करते हुए नीलिमा के माँ और बाप ने बिल्कुल वही काम किए और इस तरह नीलिमा और उसके घर वालों ने उन भूखे जिन्नात से निजात पाई।